अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। आज की वीडियो में हम कोर्स जो हमारा है ST301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसकी असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन देखेंगे। टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी डेडलाइन डेट जो आपके पास दी गई है वो 28 जनवरी 2021 की है। नीचे हम कुछ पढ़ लेते हैं। इसकी जो रूल्स ऑफ मार्किंग हैं या और भी गाइडलाइंस जो इसकी हैं। Students are strictly directed to submit their assignments before or by due date. No assignment after due date will be accepted via email. Okay, you have to submit your assignment in due date. No any time after due date will be given. Okay, now there are rules of marking. It should be clear that your assignment will not get any credit if so. There are given certain rules that will be used for marking the assignment submitted via email after due date. If you will submit your assignment via email after due date, then it will not be accepted and hence you will given 0 marks. The submitted assignment is not found as MS Word file, document file. So you have to submit your assignment in only MS Word document format, .doc or .docx format. Any other format will not be accepted as assignment. There will be unnecessary or extra or irrelevant material. So put only the relevant material in the assignment. There should not be any unnecessary, extra or irrelevant material. The statistical notations or symbol are not well written or without using math type software. You have to write the statistical notations or symbol only through math type software. Any other format will not be accepted. The assignment will be copied from handout, internet or from any other student's file. Copy materials from handout, any book or by any website will be awarded 0 marks. Okay, the medium of the course is English. Assignments in Urdu or Roman language will not be accepted. So you have to write your assignments in only English language. Any other like Roman, Urdu or any other language will not be accepted. Assignment means comprehensive yet precise, accurate details about the given topic, quoting different sources, books, articles, websites. Do not rely only on handouts. You can take data information from different authentic sources like books, magazines, websites, etc. But express, organize all the collected material in your own words. Only then you will get good marks. Okay. Objective of this assignment is to enhance and build the concepts of probability distribution. So going to the questions, the question number 1 is A and B play a game. Sorry, A and B play a game. I think there should be play a game in which A's probability of winning is 2 by 3. Okay, A and B's are two persons which play a game which in which A's probability of winning is 2 by 3 in a series of 8 games. So they play 8 games in which the winning probability of person A is 2 by 3. What is the probability that A will win exactly 4 games, at least 4 games, 6 or more games, from 3 to 6 games? So question number 2 is an urn contains 4 red balls and 6 black balls. So you have an urn which contains 4 red balls and 6 black balls. A sample of 4 balls is selected from the urn without replacement. So you have a sample of 4 balls which is selected from the urn without replacement. Let X be the number of red balls contained in the sample, then find the probability distribution for X. So let X be, let's suppose, is there any variable X which is the red balls contained in the sample. लेट्स सपोज ये कह रहा है कि अगर आपके पास x कोई भी एक वेरिएबल है जिसमें आप ये सपोज कर लेते हैं कि ये आपकी जो नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं ये उनको मेजर कर रहा है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है x के लिए। तो जनाब ये था हमारे पास दो क्वेश्चंस। असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले एज यूजुअल मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मुझे बहुत सारा टाइम लग गया था इस सोल्यूशन को बनाने में और लेट मैं इसलिए हो गया हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिला था सोल्यूशन को अपलोड करने का। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सो
Here goes our solution. Assignment number 2, course STA 301 fall 2020. Question number 1 is A and B play a game. यहाँ पे play लिखना चाहिए था, चलें मैं इसको चेंज कर देता हूँ. Play a game in which A's probability of winning is 2 by 3. So A and B play a game in which A's probability of winning is 2 by 3 in a series of 8 games. What is the probability that A will win exactly 4 games, at least 4 games, 6 or more games from 3 to 6 games? So चलते हैं solution की तरफ. अच्छा, सबसे पहला जो है कि exactly 4 games, हमें इसकी probability find करनी है कि जो हमारा जो A है वो exactly 4 games ही जीतेगा. यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है. सोल्यूशन इसका देखें, पहला है एग्जैक्टली 4 गेम्स. यहाँ पे P जो प्रोबेबिलिटी P क्या है, यहाँ पे जैसा कि हम इसको जैसे कि एक ट्रू स्टेटमेंट मान लेते हैं, ठीक है. तो P जो ट्रू स्टेटमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 2/3 है. और Q जो हमारे पास फॉल्स होगा, यानी जिस सूरत में A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो लूज कर जाएगा, वो हमारे पास क्या होगी 1 - P एंड हेंस 1/3, ठीक है. अच्छा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 8c4 मल्टीप्लाई बाय p रेज टू पावर x इंटू q रेज टू पावर x, सॉरी q रेज टू पावर 8 माइनस x. यहाँ पे ये जो 8 है ना, नंबर ऑफ ट्राई, जितनी गेम वो खेलेंगे, ठीक है, उतना माइनस ये वाला x, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है दैट x विल विन, सॉरी a विल विन. अच्छा, 8c4 यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैंने फाइंड किया, ये 70 आ गया हमारे पास. और 2 रेज टू पावर 4 is 16, 3 रेज टू पावर 4 is 81, 1 रेज टू पावर 4 is 1 and 3 रेज टू पावर 4 is 81. So after calculation we have 1120 divided by 65 61, that will be equal to 0.1707, ठीक है. तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि जो हमारे पास पहली प्रोबेबिलिटी है दैट ए विल विन एग्जैक्टली 4 गेम्स, वो हमारे पास होगी 0.1707 आ जाएगी, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पूछ रहा है एटलीस्ट 4 गेम्स, ठीक है. यहाँ पे भी वही जो है ना, पी हमारे पास 2/3 होगा और क्यू हमारे पास क्या होगा 1 - पी, दैट इज 1/3. अच्छा, इसमें पूछा गया था कि एटलीस्ट 4 गेम्स, यानी कि कम से कम वो 4 गेम है या 4 से ज्यादा भी जीत सकता है, ठीक है ना. ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ 4 ही गेम्स जीतेगा. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कितनी दफा 4 गेम्स जीतता है, या 5 जीतता है, या 6 जीतता है, या 7 या 8 जीतता है, ठीक है. तो हम इनकी सब की बारी बारी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे और उनको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी कि वो जो है ना वो एटलीस्ट 4 गेम्स वो विन करेगा, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे 4 कैलकुलेट किया था, उसी तरह से यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5 फाइंड करेंगे. 8c5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 रेज टू पावर 3, ठीक है. प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 8c5 हमारे पास 56 होता है, 2 रेज टू पावर 5 32 है, और 3 रेज टू पावर 5 243 है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 हमारे पास 27 होगा. तो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास x इज इक्वल टू 5 होगा वो होगी 0.2731, ठीक है. एंड सेम इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगी 0.2731. और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगी 0.1560. और प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 8 हमारे पास आ जाएगी 0.039, ठीक है. अब यहाँ पे x प्रोबेबिलिटी 4 की हमने पहले ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई थी, जो हमारे पास यहाँ पे ये जो लास्ट वाला जो था यहाँ पे 0.1707 था, और ये x इज इक्वल टू 5 0.2731 है, और x इज इक्वल टू 6 हमारे पास 2731 है. 7 इन सब को हम क्या करेंगे यहाँ पे जमा करेंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 विल बी 0.9119, ठीक है. तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया. नेक्स्ट है 6 और मोर गेम्स. इट मींस के जो ए होगा वो एटलीस्ट 6 गेम जो है ना वो जीतेगा, यानी वो 6 भी जीत सकता है, वो 7 भी और 8 भी जीत सकता है. तो यहाँ पे जो हमारी 6 वाली प्रोबेबिलिटी थी, 7 वाली और 8 वाली, मैंने तीनों को जमा कर दिया है. सो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 0.4681 फ्रॉम 3 to 6 गेम्स, कि वो 3 से ज्यादा और 6 से कम, या 3 और 6 भी जीत सकता है, ठीक है.
इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 + 4 + 5 + 6। 4 5 6 हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कैलकुलेट कर ली है। सो ये आपके पास 0.0682 आ गई। सो अब आप इनको सबको जमा करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 0.7851 का आ जाएगा। ठीक है, सो जनाब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ चुका है। Let's go to the question number 2. Question number 2 is an urn contain 4 red balls and 6 black balls. A sample of 4 ball is selected from the urn without replacement. Okay, you have an urn which contains 4 red balls and 6 black balls. Remember, there are total 10 balls in the urn. A sample of 4 balls is selected. You select a sample of 4 balls from the urn without replacement. So यहाँ पे एक वेरिएबल है x जिसमें दिया गया है कि let x be the number of red balls contained in the sample. Then find the probability distribution for x. यहाँ पे सोल्यूशन में आप देखें, लेट्स सपोज यहाँ पे x जैसे कि वहां पे ऊपर दिया हुआ था, मैंने उसी को सिंपल यहाँ पे लिख लिया, लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स, देन probability that x is equal to 0. This means that there is no red ball, all balls are black. Okay, the probability that x is equal to 0 is equal to 4c0 multiplied by 6c4 divided by 10c4. 10c4 is the total number of 10 balls from which we are sampling 4 balls. Okay, 4c0 is equal to 1. I have not written 1 there. 6c4 is equal to 15. You can calculate by calculator or you can Google also. अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास आ जाएगा 15/210, तो ये बन जाएगा 0.07142। ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास एग्जैक्टली 0 बॉल्स आएगी रेड, हमारे पास जो तमाम की तमाम बॉल्स होंगी वो ब्लैक होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 1। ठीक है, कि हमारे पास एक रेड बॉल आएगी और 3 जो है ना वो ब्लैक बॉल आएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, 4c1 आ जाएगा, यानी 4 में से हमारे पास एक बॉल इसकी आ रही है रेड आ रही है, और 6c3 मीन्स के 3 balls out of 6 are black. So probability that x is equal to 1 is equal to 4/20 divided by 10 is equal to 0.3809. Next is probability that x is equal to 2. This says that the probability of the red ball is 2. It means that we are selecting 2 red balls from the 4 red balls and 2 black balls from the 6 black balls divided by 10c4. It means that we are selecting exactly 4 balls out of 10. 4c2 is equal to 6, 6c2 is equal to 15. So you can calculate it is equal to 0.4285. Next is probability that x is equal to 3. It means that the probability that the chosen balls are 3 red and 1 black ball. So हम कैलकुलेट कर सकते हैं 4c3 मल्टीप्लाई बाय 6c1 डिवाइडेड बाय 10c4। 4c3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 6c1 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 6 ही आ जाएगा। ठीक है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2/10 से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.1142 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी है दैट ऑल बॉल्स आर रेड, इट मींस दैट नो ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड हियर। सो आई विल कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी 4c4 मल्टीप्लाई बाय 6c0 डिवाइडेड बाय 10c4। 4c4 is equal to 1, 6c0 is also equal to 1, so 1 multiplied by 1 divided by 2 10 is equal to 0.0047। सो जनाब ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन मुकम्मल हो जाता है। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई असाइनमेंट, एक नए क्विज या किसी और चीज़ के सोल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।